Hello and welcome to my YouTube channel Mr. Linguist. Today in this video lecture we will discuss two terms, phonemes and allophones. Phonemes and allophones usually come under the umbrella of segmental phonology, which is the study of the segments of speech such as vowels, consonants and how they make up a syllable that can be uttered. In comparison to segmental phonology, we have suprasegmental phonology, which is related to the word decoding. It involves the melody of spoken language. It includes awareness of speech rhythm and perception and production of stress, placement and word boundaries. So students often confuse between phoneme and allophone because of their similarities. They consider phoneme and allophone as a similar terms, but in actual these terms are different. Phoneme is a unit of sound in a language that cannot be sliced further. It is the most basic unit of sound. If the sound made by the letter T in English, it is the most basic unit of sound. It is called a phoneme. Phoneme is an utterance or a sound that cannot be uttered or altered if one wants the meaning to remain the same. The same phoneme can lead to different allophone, as there can be different sounds of the same phoneme. Many people believe phoneme and allophone to be same or identical, but however, this is not true, and there are subtle differences that will be highlighted in this video. So keep watching the video at the end, and I assure you that you will be know the difference between phoneme and allophone. So let's look at the shorter definition of phoneme. What is phoneme? A phoneme is an individual unit of sound in a word, e.g. t in word stand. अब जब भी कोई हमारे पास एक वर्ड होता है, वो वर्ड डिफरेंट साउंड्स का मर्जब होता है. जैसे कि वर्ड है स्टैंड, जो कि स ट वॉवेल अ न ड से बना हुआ है. सो मतलब की बात यह कि ये डिफरेंट साउंड्स मिलके एक वर्ड बना रहे हैं. तो जो ट है ये एक फनीम है. सो ऑन द अदर हैंड वी हैव एलोफोन. व्हाट इज़ एन एलोफोन? एन एलोफोन इज़ वन आर्टिकुलेशन ऑफ अ फनीम, e.g. ट साउंड इन वर्ड्स लाइक हॉट एंड टॉप. अब एक फ़नीम की डिफरेंट आर्टिकुलेशंस होती हैं, जैसे कि फ़नीम है ट, और इस ट की हॉट और टॉप यानी कि जो दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंट आर्टिकुलेशन है. सो अब यहाँ पे जो दो वर्ड्स हैं हॉट और टॉप, इसमें जो हॉट वाला वर्ड है इसमें जो ट आ रहा है, इसमें ना टंग एडवांस हो रही है ना रिट्रैक्ट हो रही है. बाकी जो वर्ड टॉप है इसमें जब हम ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी टंग जो कि एडवांस हो रही है, यानी कि एडवांसमेंट हो रही है. तो जब एडवांसमेंट या रिट्रैक्शन होती है किसी भी एक फ़नीम में, तो हमारे पास एलोफोन्स बनते हैं या फिर एलोफोन्स प्रोड्यूस होते हैं. जैसे कि इस एग्जांपल में ट को डिफरेंट टाइप से या डिफरेंट तरीक़ों से आर्टिकुलेट किया जा रहा है. So it was a briefer introduction about phoneme and allophone. Now we will discuss them in a great detail. Let's discuss about phonemes and allophones in detail. Phonemes. The smallest sound unit that can be used in many different words but sounds the same in all words, such as the smallest sound of p in words like pot, spot, spit, phase, etc. Though the sound made in all these words is not identical, the sound of phoneme p is perceived as same and believed to be making use of the same phoneme p. अब ये जो फ़नीम होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी साउंड का, और डिफरेंट वर्ड्स में यूज़ होता है फ़नीम, पर उसका जो साउंड होता है वो हर वर्ड में सेम ही होता है. जैसे कि स्मॉलेस्ट साउंड प है, यानी कि इसको हम एक फ़नीम कंसिडर करते हैं और इसको हर वर्ड में अप्लाई करते हैं, और फिज़िकली हम इसको देखेंगे तो
ये हर वर्ड में सेम ही साउंड देगा। वर्ड्स कौन से हैं? वर्ड्स हैं पॉट, स्पॉट, स्पिट, फेस। अब इन वर्ड्स में जो फ़नीम प है वो सेम साउंड दे रहा है, तो इस हिसाब से ये एक फ़नीम ही होगा। अब ये जो वर्ड्स हैं, इन सब वर्ड्स की डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, डिफरेंट तरीके से इनको साउंड किया जा रहा है, बट इनमें जो फ़नीम हमने जो मतलब कि कोई पार्टिकुलर फ़नीम यूज़ किया है जो कि प है, इन वर्ड्स में यूज़ किया है, वो उसका साउंड सेम ही है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारा टारगेटेड फ़नीम इन वर्ड्स में उसका साउंड सेम ही होगा। हमारा टारगेटेड फ़नीम क्या है? प है। और इस टारगेटेड फ़नीम का जो साउंड है इन वर्ड्स में, ये जो वर्ड्स हैं पॉट, स्पॉट, स्पिट, फेस, इनमें साउंड इसका सेम ही है। Now we will look at allophones. For a single phoneme, there can be a number of different sounds that can be made. These sounds become clear when we place a piece of paper in front of our mouths and see the reaction when making different sounds with the same phoneme. Thus, different sounds made using the same phoneme are called its allophones. अब एक फ़नीम जो होता है, उस एक फ़नीम के डिफरेंट एलोफोन्स होते हैं, या फिर वो डिफरेंट तरीक़ों से मतलब कि उनको प्रोनाउंस किया जाता है या आर्टिकुलेट किया जाता है। और वो जो डिफरेंट आर्टिकुलेशन होती हैं उसी एक ही फ़नीम की, और उन्हीं डिफरेंट आर्टिकुलेशंस को हम उस एक फ़नीम की एलोफोन्स कहते हैं। यानी कि एलोफोन्स मिलके एक फ़नीम बनाते हैं। यू कैन से दैट merger of allophones is called a phoneme. अब मतलब किस तरीके से हमें पता चले कि आया कि जो हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एलोफोन है या फ़नीम है, वो इस तरीके से आपको पता चल सकता है अगर आप एक पेपर का पीस अपने सामने रखें और फिर आप वो वर्ड प्रोड्यूस करें और उस वर्ड में जो आपका टारगेटेड फ़नीम है या टारगेटेड साउंड है वो लाजमन यूज़ किया गया हो। फिर आपको पेपर जो आपने रखा हुआ है उसमें थोड़ी मूवमेंट नज़र आएगी। अगर मूवमेंट नज़र आ रही है तो आपको समझ आ जाएगा कि जो साउंड या फिर हमने जो टारगेटेड फ़नीम हमारा था, वो जो जिसको हमने मतलब कि जब आर्टिकुलेट किया और पेपर हिला भी या फिर मोशन में भी आया, तो वो उसका एलोफोन था। जैसे कि हम किसी भी एक टारगेटेड फ़नीम को लेते हैं, टारगेटेड फ़नीम लेट सपोज हमारा है प, एज इट वाज सेम इन द प्रीवियस एग्जांपल। या फिर आप ट को ले लें तो ट के डिफरेंट आर्टिकुलेशंस होती हैं और वो डिफरेंट आर्टिकुलेशंस उसकी एलोफोन्स कहलाते हैं। अब हमारे पास लेट सपोज दो वर्ड्स हैं हॉट और टॉप। अब हॉट में जो ट यूज़ किया गया है वो वहाँ पे आपको कोई भी अगर पेपर आपके सामने है, अगर आप हॉट प्रोड्यूस करेंगे तो जब ट पे आप आएंगे, ट मतलब कि जब आप प्रोड्यूस करेंगे उस वर्ड हॉट के, तो आपको कोई भी मोशन या मूवमेंट पेपर में नज़र नहीं आएगी। जब आप वर्ड जो दूसरा वर्ड है टॉप, अगर वो आप प्रोड्यूस करेंगे तो वो उसमें थोड़ी बहुत मतलब कि मोशन आएगी, क्योंकि वो एक पफ ऑफ एयर होता है जो कि उस पीस ऑफ पेपर को लगता है, तो पीस ऑफ पेपर थोड़ा मोशन में आता है। तो इस तरीके से आप फिज़िकली इन फ़नीम्स और एलोफोन्स के बीच में डिफरेंट या फिर डिफरेंस मालूम कर सकते हैं, या फिर इनको फ़िज़िकली भी समझ सकते हैं बाय यूजिंग दिस ट्रिक और बाय यूजिंग अ पीस ऑफ पेपर व्हेन प्रोड्यूसिंग द टारगेटेड फ़नीम. So now we will look at the difference between phoneme and allophone. Phoneme and allophone are believed to be same, but they are different in actual. So we will look at the significant differences between phoneme and allophones. Phonemes are basic sound units. They are significant and non-predictable. जो फ़नीम्स होते हैं ये बेसिक साउंड यूनिट्स होते हैं और ये सिग्निफिकेंट होते हैं एंड नॉन प्रेडिक्टेबल होते हैं. इन डिफरेंट पोजीशंस इन डिफरेंट वर्ड्स फ़नीम्स हैव डिफरेंट साउंड्स. दिस इज़ व्हेन दे आर कॉल्ड एलोफोन्स विच आर नॉट सिग्निफिकेंट एंड प्रेडिक्टेबल. अब जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स में अगर हमारा कोई पार्टिकुलर या कोई टारगेटेड फ़नीम हमने यूज़ किया है, उसकी पोजीशन एक वर्ड में डिफरेंट है और दूसरे वर्ड में डिफरेंट है, तो जो आर्टिकुलेशन होगी वो भी डिफरेंट होगी.
जैसे कि एग्जांपल हॉट और टॉप में जो ट था हमारा टारगेटेड फ़नीम, उसकी हॉट में मतलब वर्ड में उसकी जो पोजीशन थी वो एट द एंड आ रहा था, और जो दूसरा वर्ड था टॉप उसमें वो इनिशियल में आ रहा था। तो डिफरेंट पोजीशन थी और वर्ड्स भी डिफरेंट थे। तो डिफरेंट पोजीशंस पे होते हुए डिफरेंट वर्ड्स में जो हमारा टारगेटेड फ़नीम होता है उसकी डिफरेंट आर्टिकुलेशंस होती हैं, और वो डिफरेंट आर्टिकुलेशंस ही एलोफोन्स कहलाती हैं। और ये जो एलोफोन्स होते हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं और प्रिडिक्टेबल होते हैं। द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन अ फनीम एंड एन एलोफोन लाइज इन वाट इज़ देयर इन योर माइंड एंड वाट कम्स आउट थ्रू योर माउथ। अब कभी कभी ना हम जब वर्ड सोचते हैं अपने माइंड में, तो हम लाइक अ नेटिव स्पीकर सोचते हैं, या उनको अपने माइंड में जब सेट करते हैं तो हमें ये होता है कि हम इसको एज अ नेटिव स्पीकर प्रोड्यूस करेंगे। बट इन एक्चुअल व्हेन यू प्रोड्यूस देम दैट डजंट हैपन, और वो चीज़ नहीं होती जो आप अपने माइंड में सोचते हैं। तो ये एक मिथ है in case of phoneme and allophone. So it is also a major distinction between a phoneme and an allophone. So these are the differences and I hope you will remember them. So thanks for watching. Like and subscribe my channel if you are new to my channel, and click on the bell icon if you want to get latest updates of my channel. Thank you and Jazakallah.